السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. الحمدللہ ہم سیکنڈ لاسٹ جو مرکبات میں سے ہے اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک مرکبات رہ جائے گا اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم کلاس کرتے نہیں, زبانی طور پہ بتاتے ہیں مرکب ہوگی. تو آج ہم پڑھیں گے مرکب اشاری. اشاری کا نام سن کے آپ کے ذہن میں اشارہ آتا ہے. تو وہ مرکب جس میں ایک اسم جو ہے اشارہ ہوتا ہے, دوسرا مشار علیہ ہوتا ہے. تو اس کے دو حصے ہو گئے, ایک اشارہ دوسرا مشار علیہ. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اردو میں برخلاف ہوتا تھا, اختلاف ہمیں کرتے تھے, لیکن یہاں یہ ہے کہ ہم پہلے مشار علیہ کو دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس کے چاروں پہلو جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. مؤنث ہے یا واحد ہے یا وسط اس کی نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اس طرح کر کے ہم اعراب بھی دیکھیں گے. تو چاروں پہلو دیکھ کے ہم اس کے حساب سے مشار علیہ کو دیکھیں گے, اس حساب سے ہم اشارہ کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم وہ کریں, ہم اشارے کی تھوڑا سا پریکٹس کر لیں تاکہ ہم مشار علیہ تو کوئی بھی کسی چیز پہ اشارہ کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے مشار علیہ. اس لیے معرفہ ہوتا ہے کہ بہت سارے آدمی کھڑے ہیں, اگر میں کسی کو پوائنٹ کروں کہ یہ, تو وہ خاص ہو جاتا ہے, اس لیے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں کتابیں رکھی بہت ساری, تو میں کہوں یہ کتاب, تو وہ ہو جاتا ہے اس معرفہ. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں, ایک دو چیز ذہن میں رکھیں. ایک تو ہے اشارہ قریب کا. بیٹھو گے کیا؟ بیٹھو. تو ایک تو یہ ہے کہ قریب کا اشارہ, دوسرا دور کا اشارہ. قریب کے اشارہ کو آگا کہتے ہیں, اشارہ قریب ہوا, اور اشارہ بعید یعنی بعید مانے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اشارہ بعید ہو گیا. بعید مانے دور. تو دور کا اشارے کا الگ اشارہ ہے اور قریب کا الگ اشارہ ہے. مؤنث کا الگ اشارہ ہے, مذکر کا الگ اشارہ ہے, ایک کا الگ اشارہ ہے, تثنیہ کا الگ اشارہ ہے. اسی طرح تو اشارے جو ہیں ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ یہ یا وہ جمع کے لیے, لیکن انگریزی میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ دس اینڈ دیز جمع میں ہو جاتا ہے, دیٹ اینڈ دوز. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہر چیز کا واضح ہوتا ہے کہ اس میں دو کے لیے ایک الگ وہ ہے. باقی جو ہے اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ مذکر واحد کا جو پہلا وہ ہے رفع, وہ مبنی ہے اصل میں, کہ وہ تینوں فارم میں, رفع میں بھی حاذا, نصب میں بھی حاذا, جر میں بھی حاذا. تو اس کو میں نے لکھا ہے تینوں کی, اس میں ایک دفعہ حاذا لکھ دیا, یعنی تینوں یہ مبنی کیسا ہوتا ہے جیسے عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ, موسیٰ موسیٰ موسیٰ. اسی طرح اشارے جو ہیں یہ پہلا اور جمع یہ مبنی ہوتا ہے. یہ دونوں کیا ہوتا ہے مبنی, یعنی تینوں حالت میں, رفع حالت میں بھی ہاؤلائے ہوگا, نصب میں بھی ہاؤلائے ہوگا, جر میں ہوگا. لیکن اس کا تثنیہ جو ہے وہ رفع میں الگ ہوتا ہے, نصب اور جر میں, یعنی غیر منصرف کی جو اسٹائل ہے اس پہ آتا ہے. غیر منصرف یہ تھا کہ
रफ़ा का अलग होता था, नसब और जर एक होता था। इसमें भी यही है कि तस्निया में हाजाने और नसब और जर में हाज़ीनी होगा। ठीक है, तो पहले ये करने करीब करें फिर इधर का करेंगे। तो आइए इशारा करें, हाजा हाजा और हाजानी हाजानी और नसब का हाजी। हाजाई हाजाई। ठीक है, वही आने की साउंड है, वही ऐनी की साउंड है, दोनों में आने की साउंड। हाजानी रफ़ा और हाजीनी नसब और जर। ठीक है, हा उलाई ये सब, हा उलाई ये सब। रफ़ा में भी हा उलाई, नसब में भी हा उलाई, जर में भी हा उलाई। ठीक है, इसके बाद मुन्नस का है हाज़िही, ये साथ से करना में हाज़िही, हातानी हातानी हातीन, हातेनी ऐनी की साउंड आ गई नसब और जर के लिए। ठीक है, तो और जो जमा है ये दोनों की सेम है, हाउलाई। हाउलाई जो है कॉमन है इन दोनों में ये सब, और तीनों जो है रफ़ा नसब जर में हाउलाई हो जाते हैं, और मुन्नस और जर में भी हाउलाई होगा। ठीक है, ये तो करीब का हो गया। हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एक दो साल, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये कर लें। दूर के लिए ज़ालिका, ज़ालिका ज़ालिका रफ़ा में भी ज़ालिका, नसब में भी ज़ालिका, जर में भी ज़ालिका। ठीक है, लेकिन तस्निया में गैर मुनसरिफ होता है, तो पहले तो का ज़ानिका आने का। एक चीज़ और आपको याद करने के लिए ध्यान में रखिए कि ये जो हा है ये करीब के इशारे में सारा हा शुरू में आता है। हा जहाँ आएगा समझ लें कि ये करीब का इशारा है, और इसकी एंड जो है जो बईद है उसकी का पे होती है। तमाम जो है का तक क्या जाएगा, आप भी पढ़ते हुए ख्याल रखेंगे। जाने का नसब भी जाने का, जर भी जाने का। जाने का खत्म हो रहा है, जाने का और जैनी की, जैनी का, जैनी ऐनी की साउंड है, का समझ आएगा। फिर उलाई का, उलाई का नसब में भी, जर में भी, और यानी रफा में भी। तिलका तिलका औरत के लिए तिलका, दूर के लिए तिलका। तानिका तानिका तैनिका। ठीक है, और उलाई का, उलाई का मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम है, और उलाई का तीनों हालात के लिए सेम है। ठीक है, तानिका दो के लिए और तैनिका भी दो के लिए। तानिका भी दो के लिए और रानिका भी दो के लिए अलग। ठीक है, इसमें दो शब्द, बाकी सब हुआ। ये मैंने लिख दिया था लेकिन बताई थी आपको। तस्निया में वाहिद जमा जो है ये क्या होते हैं, मबनी होते हैं। तस्निया गैर मुनसरिफ होता है। अच्छा, ये तमाम इसमा जो इशारा जो है वो मारफा है, मारफा जितने इशारा है वो मारफा है। तो मारफा अगर अगले नकरा से मिलेगा तो उसे मारफा कर देगा। ठीक है, ये एक रूल है। आइए फिर थोड़ा सा इधर पढ़ भी लें। देखिए, हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा के लिए कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं। ठीक है, उर्दू में ये वो, अंग्रेज़ी में दिस या दिस या दैट या दोस्त, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज क्या कहते हैं, इस्मा इशारा। इस्मा इशारा कहते हैं जिससे इशारा किया जाए, और जिस तरफ इशारा किया जाए, जिस तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अलैह कहते हैं। और हमें जब इशारा का मुरक्कब होगा तो हमें मुशार अलैह को देखना जाएगा। ये औरत है तो हम औरत का इस्तेमाल करेंगे, वाहिद है तो वाहिद का इशारा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह तस्निया है तो तस्निया का, जमा है तो जमा का। वो चारों पहलू को देखेंगे हम कि मुशार अलैह के चारों पहलू कौन से हैं। ये मैंने कोशिश की ग्राफ बनाने की, शायद मेरी तवक्का है कि शायद आपको क्लियर होगा। ये लड़का, ये लड़का, ये लड़के का हम मुशार अलैह देखेंगे, लड़के को देखेंगे। लड़के, लड़का का क्या मुशार अलैह, क्या मारफा है, मुज़क्कर है, वाहिद है, हालत रफ़ा है। इसी की हम इसको मारफा बनाएंगे। इशारा तो वैसे ही मारफा है। ठीक है, इशारा तो वैसे ही मारफा है, तो इसमें इशारा मारफा है। मुज़क्कर का इशारा हाजा है,
واحد کے لیے حاضہ استعمال کریں گے، حالت رفع میں ہے حاضہ، حاضہ اس لیے حالت رفع میں حاضہ ہے کہ حاضہ نصب میں بھی حاضر ہے، یہاں پر حالت رفع میں شکل سیم ہے، ہم بھی جب بھی کوئی نصب میں بھی آئے گا تو ہم کہیں گے حاضہ نصب میں، جر میں آئے گا تو کہیں گے حاضہ جر میں، جر میں۔ شکل ایک رہے گی، صحیح ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کر لیا تو حاضہ ولد اب ہو گیا حاضہ ولد، حاضہ ولد۔ اسی طرح اب وہ لڑکی ہے، یعنی یہاں سے الٹے ہاتھ سے وہ لڑکی، دور کا اشارہ دور کا اشارہ، وہ لڑکی ہے تو ہم دیکھیں گے معرفہ ہے تو ہم اس کا کہیں گے معرفہ جو ہے اشارہ جو ہے ویسی معرفہ ہے، ذالکہ ہو گیا۔ اچھا پھر یہ کہ لڑکی کو دیکھیں گے مؤنث ہے تو ہم ذالکہ نہیں استعمال کریں گے، تلکا استعمال کریں گے، لڑکی ہے نا تو تلکا استعمال کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ واحد ہے، ہاں واحد ہے، تلکا ہے۔ پھر ہم دیکھیں حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں تلکا ہی آئے گا، صحیح ٹھیک ہے۔ تو بنت کو ہم دیکھ لیے یہ ہے تو اس کا اشارہ کر ہم دیکھیں گے یہ معرفہ ہے اور مؤنث ہے اور واحد ہے حالت رفع میں، تو تلکل بنتو وہ لڑکی، تلکل بنتو وہ لڑکی۔ اچھا یہ ہوگی ایک بات اور جو ہے خاص طور پہ خالص کی، اس میں نا تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہے کہ جب بھی جمع مکسر کس کی، غیر عاقل کی، عاقل اور غیر عاقل میں فرق لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن میں ریپیٹ کروں گا اس لیے کہ جو نئے لوگ ہیں اس کو بھی سمجھ میں آئے۔ تو عاقل جو ہے عربی زبان میں انسان، جن فرشتہ اور جن، تین عاقل، باقی سب غیر عاقل، باقی سب غیر عاقل۔ کون کون سے عاقل ہیں؟ انسان فرشتہ جن۔ تو ہم کہہ رہے ہیں غیر عاقل، غیر عاقل کون ہوا؟ باقی سب جو ہے غیر عاقل ہے، بلی غیر عاقل ہے، کتا غیر عاقل ہے۔ تو غیر عاقل کی جمع مکسر جیسے دروازہ غیر عاقل ہے، اس کی جمع ہوئے ابواب، تو ابواب کے لیے ہم اشارے کی مؤنث واحد مؤنث استعمال کریں گے، اشارے کے لیے حالانکہ مذکر ہے لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر جو ہے اس کے لیے اشارہ مؤنث واحد آئے گا۔ پھر سے سنیں، عاقل تو میں نے بتا دیا کون سے عاقل ہیں، اس کے لیے اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر، جمع سب نہیں، جمع مکسر جو ہوگی، جیسے میں نے باب کا بتایا ابواب ہوا، اگر میں اس کا اشارہ کروں گا تو ابواب جمع ہے تو اس کے لیے میں مؤنث کا واحد، یعنی اگر میں کہوں وہ دروازے تو میں تلکا ابواب کہوں، ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی بات؟ تھوڑا سا ہٹ کے بات ہے، اس لیے خاص طور پہ غیر عاقل کے، اب غیر عاقل میں جیسے بلی کی، گائے کی، سب غیر عاقل ہیں، اس کی جب جمع آئے گی تو ہم اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال کریں گے، کلیئر ہے بات؟ اچھا یہ اتنی زیادہ مشکل نہیں چیز ہے، بہت آسان ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے یہ آدمی ہے، یہ آدمی اردو میں ہم یہ آدمی کرتے ہو، عربی میں بھی یہ مشار علیہ، یہ ہے اردو میں مشار علیہ، مشار علیہ کو دیکھیں گے، مشار علیہ آدمی کیا ہے؟ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ حالت رفع ہے تو رجلن ہے، مذکر ہے، پھر یہ واحد تو ہو گیا، اور معرفہ ہے تو یہ معرفہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہ رجلن ہے، اس کے معنی آدمی کے معنی رجلن ایک آدمی، جب اسے معرفہ بنائیں گے تو پہلے اس کو بنا لیں، اس کو بنا لیں، یہ ال یہ ہم نے معرفہ بنا لیا۔ اب اس کے لیے اشارہ بھی واحد لگے گا، واحد کا اشارہ کیا ہے؟ یہاں دیکھیے ہاذا، تو یہاں ہاذا لگے گا، ہاذا واحد میں ہے، ہاذا واحد میں، اس کو لکھتے ہوئے ہیں کہ اس کی آواز کو کھینچتے ہیں
जो हाजा होता है इसलिए यहाँ पर एक अलिफ देते हैं, इसको हाजा कहते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें अलिफ डला होता है। अरबी की खासतौर पे जो इसकी लिखाई है इसमें ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। हाजा जा को खींचते हैं, हाजा खींचेंगे, इसलिए वो करने के लिए थोड़ा सा खींचेंगे। तो हाजर ये आपको पता है कि ये जो है शमसी है, इसलिए अलिफ लाम पढ़ा लीजिएगा, हाजर रजलू, ठीक है। हाजर रजलू, हाजर रजलू ये आ। नंबर 2 जो है वो लड़का, वो लड़का, ठीक है। वो के लिए वाहिद कौन सा होगा? लड़के को देखेंगे पहले, लड़का क्या वाहिद है। तो एक लड़के के लिए हमारे पास वाहिद होना चाहिए। तो वाहिद हमारे पास है हाजा, नहीं वो है, तो क्या होगा? जालिका। क्या मैं लिख दूँ शायद इससे आप लोग, ये है फरीद, ठीक है। तो वाहिद क्या है? जालिका, लड़का एक था, जालिका हमने वाहिद इस्तेमाल किया। जालिका को देखेंगे कि ये मुज़क्कर है, वो जालिका, ठीक है, हमने इस्तेमाल किया। अगर मोहन्नस होता तो तिलका इस्तेमाल करते, ठीक है। तो दूसरी चीज़ देखी हमने कि वाहिद है और मार्फा बनाना इसको, तो ये वलातुल माना होता है एक लड़का। डिक्शनरी जब देखेंगे ना आपको इस तरह मिलेंगे, उसमें अल भी लिख के आया हुआ होगा, लेकिन ये कि उसको जैसे तो इसको अल वालों से पहले कर देंगे। ये तमाम जो है हम इसको चेक कर लिया, इसको अल आने के बाद तनवीन खत्म हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे? जालिका, तो जालिकल वाला ये 2 मौलिम हमारे पास। मौलिम जो है जमा उसकी कोई भी नहीं है, मौलिम होते हैं, ठीक है। हमारे उर्दू में नहीं है, लेकिन अरबी में 2 के लिए अलग है और 2 से ज़्यादा के लिए अलग है। तो मौलिम ये 2 की वजह से ये जो है यहाँ आएंगे आप, क्या है? ये है तो हाजानी, रफा होता है तो आपको हाजानी आपने चुना। उसके बाद 2 है और रफा ये हो गया हाजानी, और मुज़क्कर है तो हाजानी होगा, ठीक है। फिर ये कि वाहिद है, 2 मुस्ना है इसलिए 2 होगा। नकरा है मारफा बनाना, तो इसको अल यहाँ भी हो गया, अल मुअल्ला, ठीक है। तो इसके लिए इशारा भी कौन सा होगा? रफा कौन सा? आज़ान है, आज़ान, और ये पढ़ा नहीं जाएगा फिर, ठीक है। हाज़ल मौलमानी, वो 2 मौलम, ठीक है। अब ये 2 मौलम था ना, इसके हाज़ान, वो 2 मौलमात, तो उसके लिए भी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आप बोलिए। तानिका, बिल्कुल ठीक है। ताने का हम इस्तेमाल करेंगे। ताने का रफा है और तैनिकिया जो है वो नसब और जर है, तो इसलिए वो 2 इसमें देखा का रफा है। हम इसको पहले तो रफा बनाएंगे, मुल्लमात को। मुल्लमात माने होते हैं हमारे अरबी में भी मुल्लमात, तो अल लगा के हम इसको अल है, वो सब नहीं लगाऊंगा, फिर आखिर जो है एराब लगा दिया करूँ, मुल्लमात। तो अब ये वो सब है, वो सब के लिए क्या होता है? सब के लिए
उला वो तो उलाइका उलाई उलाइका। उलाई। तो यहाँ उलाइका जो है, कहीं अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो बता सकते हैं। उलाइका मुअल्लमातुन, वो नहीं, दो है ना, दो ये था दो। यार, सॉरी, ये मेरी गलती है। तानी का आएगा, वो दो, तो क्या कहा, तानी का पहले तो हाथानी आएगा ना, नहीं वो जो है तानी का आएगा, दूर का इशारा है। दूर का इशारा है। तो बात चाहता मैं वो चीज़ की हमारे उसमें तो एक के बाद जमा हो जाती ना, इसलिए ज़्यादा अल्लाह माँ ता और अल लगा के हम इसको तानी अब हम क्या लगाएंगे, तानी का ता ठीक है, एक दो बनाएंगे तो आपको खुद बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। ये लड़के मतलब ये कि हमारी ज़बान में कोई जमा के लिए कोई वो नहीं होता, ये लड़के वाहिद के लिए भी ये लड़का, ये लड़के यही इस्तेमाल होता है। लेकिन जमा लड़के है, हमें बता रहा है कि हम लड़के को जमा। देखेंगे, लड़के माना औलाद कहते हैं, जमा हो वलादू वलादानी और औलादू जमा जब, तो औलादुन को हम बनाएंगे क्या, अल औलादुन, हाँ उलाई तो ये लड़के हैं ना, इसलिए औलाद। इसकी जमा हाजा, हाजाने, दो के लिए हाजाने और आउलाए ये आउलाए। सब। तो कहते देखिए हाजा ये, हाजाने ये दो ये दो और हाउलाए ये सब। ये सब। ठीक है, एकदम बोलिए आप लोग। हाजा आजाने अजाने आउलाई औलाई। तो अब ये हाउलाए। लड़के हैं, हाउलाए, वो क्या कहते हैं, थोड़ी देर मैंने आपको बताया था कि ये जो करीब का है उसके शुरू में हर में हाँ आएगा, और जो वईद का है, दूर का काफ है, आएगा। उसके आखिर में काफ आएगा। इसलिए करीब का हुआ हाँ आएगा, जैसे हाजा, हाजाने, आतैने, हा उलाई, देख रहे हैं, हाजे ही औरत के लिए, आताने, ठीक है, हा उलाई, तो हाँ आएगा। लेकिन जो जाने का, तिल का, जाने का, ताने का, उलाई का, ये सब में आखिर में का आएगा। ये बैत के दूर लिए। का इशारा। ये इशारा की याद करते हुए आपको जानना है कि ये तो दूर का आया, दूर का होगा, और ये हाथ से शुरू हो रहा है, ये करीब का होगा, जमा में हो, तस्निया में हो या वाहिद हो। अच्छा, दो उलाई का। औरतें, उलाई का जी, तो औरतों को देखिए, पहले औरतें कितनी हैं, निसाउन, जमा औरत को कहते हैं निसाउन। इमरातु, इसका देखिए बिल्कुल जमा मुकस्सर कैसी है, इमरातुन, इमराताने और निसाउन, जमा है ठीक है। इमरातुन माने एक औरत, इमराताने दो औरतें, और निसाउन एक औरत, ठीक है। लेकिन हमें इसको बनाना है, ये मुशार अलैह हमेशा मारफा होता है, तो इसको हम अल लगा के अल उलाई तो इशारा हमारा क्या है, जमा है ये, उलाई। तो जमा के लिए पहले क्या रफा होगा, रफा तो ये ऑलरेडी होता है, इशारा सारे रफा होती है, इशारे जितने भी हैं वो रफा होते हैं, तो इशारा रफा है। फिर जिन्स देखें, ये औरत है इसलिए तिलका आएगा, तिलके वाली इसमें जाएंगे हम, तो ये उलाई। जमा है तो तिलका का क्या, उलाई का ये भी होगा। मुज़क्कर मोनस जो है जमा में एक जैसा होता है, तो उलाई का जमा सालिम है। मसाला
जमा मुकस्सर नहीं कुतुब में अलिफ इस किताब में किताब अच्छा। सालिम में तो उड़ गया ना, कुतुब कहा तो अलिफ तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जमा मुकस्सर, तो ये किताबें जमा है, क्या आएगा? हाउलाई सारा देख लिया आपने? हाँ उलाए सही है। हाँ सारे लोग बोले ताकि पता चले कि हाउलाई सब ये पता चलेगा सब में एक है, वरना लगेगा लड़के बैठे हैं। ये शहर, शहर कहते हैं बलादुन, ये शहर हाजा 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 हाज़ल हाजल हाजल नाम जरूर आएगा। जल ठीक है माशाल्लाह, आप लोग कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। हाजल हमने पढ़ा था, हाजल बलादुन, ये पढ़ा था ना। हाजल बलादुन, वो नेक लड़का। अब थोड़ा सा बढ़ गए हम। नेक लड़का जो है सिफ्त है, नेक सिफ्त है, तो हम इसको लड़के को इधर लाएंगे, नेक को उधर ले जाएंगे, बाकी इशारा तो मेरा हो जाएगा। वो है एक है नेक लड़का, कितना है? एक है सिंगल में वाइस है। फिर ये मुज़क्कर मुअन्नस, हाजा मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्कर मुज़क्कर है। नकरा मारफा बनाएंगे इसको, ये कहते हैं वलादुन सालिहुन, अल वलादुन अस्सालिह। आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें अल अल ये लगा हुआ है। अब ये कि पहले इसको कर दें, वो नेक लड़के क्या होगा? कौन एक लड़का अब देख रहे हैं आप इतना, अब तो याद हो जाएगी ज़ालिका, ज़ालिक ठीक है ना। तो ज़ालिका क्या है? मारफा है। तमाम इशारे जो है मारफा होते हैं, ठीक है। ज़ालिकल वलदुस सालिह। देखिए एक बात मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया था कि अब तो हम करीब आ रहे हैं इसको ख़त्म करने के, तो हमें जुमले बनाने हैं। तो जब इसके हर के आपने देखा दो पोर्शन थे, दोनों पोर्शन को सेम होता था तो हम कहते था नामुकम्मल जुमला है। क्या है नामुकम्मल जुमला? नामुकम्मल जुमले को क्या कहते थे? नाकिस। मुकर्रर कभी नाकिस, कभी तक हम मिटाएंगे पूरी ताकि आप लोग को पता रहे। इसमें ज़रा सा फ़र्क है, जुमला मुकम्मल करने में एक ज़रा सा फ़र्क है। वो ये है कि आपका एक हिस्सा मारफा होगा, दूसरा नकरा होगा, और उसका नाम चेंज हो जाएगा। जिससे शुरू हो रहा है जुमला उसको कहेंगे मुब्तदा, और मुब्तदा जिससे इब्तदा की उसकी खबर क्या है, दूसरा लफ्ज़ होगा खबर। तो मुब्तदा क्या होगा? मारफा, और खबर क्या होगा? नकरा। तो आपको उसके आखिर में अपनी तरफ से है, हूँ, वगैरह लगाएंगे तो आपका वो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम यानी कि अगला जो हमारा वो होगा वो बहुत आसानी से चलेगा। फिर हम इसमें इसी से शुरू कर देंगे। हम ये जितने भी हमने तौसीफ़ी बनाए हैं, मुरक्कब इजाफ़ी बनाए हैं, ये बना रहे हैं, ये सब को हम ऐसे करेंगे। मुब्तदा और ख़बर लिखेंगे, मारफा वो बनाएंगे, वो सारे मुकम्मल जुमले। उसके साथ हम है, हूँ, जिस जो स्टाइल हुआ, मुज़क्कर है वाहिद है तो है, और जमा है तो हैं लगाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसमें कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन उसमें शुरू में बताता तो आप लोगों को थोड़ा सा वो होता है, इसलिए अभी बता रहा हूँ। अब फिर हम जब जुमले बनाएंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि ये जो है मुब्तदा है, ये शुरू किया जा रहा है, और दूसरा नकरा करेंगे इसको, हो जाएगा। अगर दोनों सेम होगा
تو جملہ نامکمل ہوگا. اچھا لڑکا, ٹھیک ہے, نیک لڑکا. تو یہی ہے, دیکھیے نیک لڑکا ہے نا. اگر میں کروں الولد صالح, تو ذالک الولد صالح, وہ ایک لڑکا نیک لڑکا ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی اس میں نے اس لیے اضافی طور پہ میں نے کہا کہ آج تھوڑا بہت ہونا چاہیے. اچھا, وہ اونچے پہاڑ, پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ عربی میں جبل. جبل. اس کی جمع جو ہے یہ اونچے پہاڑ سے جمع, ہمارے اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اونچے پہاڑ, ایک پہاڑ کو کہہ رہے ہیں پہاڑ, لیکن اس کے مطلب یہ جمع ہے. وہ اونچے پہاڑ, اونچا نہیں, اونچے پہاڑ کہہ رہے ہیں اس لیے جمع ہے. تو جبل کی جمع جو ہے جبال ہوتی ہے, جبال. اور اونچے کو شام خاتون بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں. اونچا اوپر اوپر کہتے ہیں رفع کو, تو شام خاتون کہتے ہیں. تو اب وہ اونچے پہاڑ, تو وہ ہے جمع ہے اور وہ ہے, تو کیا ہوگا؟ ادھر کرتا ہوں اشارہ کرتا, اولئک الجبال ہے نا. ہاں, قرآن جبال و شاخت, کیونکہ یہ تعریف ہے, اونچی جو ہے تعریف ہے. ہماری اردو زبان میں یہ ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے, کالا لڑکا, گورا لڑکا, پیلا آم, تو پہلے آتا ہے. لیکن عربی میں آم پیلا جو صفت ہوتی ہے وہ لڑکا بعد میں کالا, آتی ہے. آم پیلا لڑکا کالا, ہاں ایسا ہوتا ہے, آم پیلا. لڑکا گورا. تو وہ اونچے پہاڑ اس لیے ہم لکھیں گے اس کو, وہ پہاڑ اونچے اولئک کریں گے پہلے, تو پھر کو بنا رہے ہم سیکھ گئے تھوڑا سا. اولئک الجبال, اولئک جبال الجبال, اولئک الجبال. اور اش جیسی صفت میں کیا ہے, جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے. تو صفت کیا ہے؟ ال لگا ہوا ہے, اس میں بھی ال لگایا, ٹھیک ہے. یہ پہاڑ تو مذکر ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. جبال جو ہے مذکر ہے اور جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جمع مکسر کے لیے کہا تھا غیر عاقل. پہاڑ جن میں آتا ہے نہیں آتا, فرشتوں میں آتا نہیں آتا, انسان میں آتا نہیں آتا. تو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو کیا بنائیں گے؟ وہ فارمولہ یاد ہے کیا لگے؟ مؤنث واحد مؤنث اشارہ لگائیں گے. تو یہ جو ہے تلک الجبال, دل کا نہیں, واحد تو ہاں دل کا واحد, تلک الجبال شام خاتون, ٹھیک ہے. ایسے ہمارے ماشاء اللہ ہیں جو فوراً نوٹ کیا انہوں نے کہ یہ تو اچھا. بالاد الامین, امن والا شہر. بالاد الامین ہم پڑھ چکے ہیں, یہ گزرتا ہے ہمارے. یہ امن والا شہر, تو اس کا جو ٹرانسلیشن امن والا شہر کو بالاد الامین, تو اس میں ہم ال لگا کے اس کو امین جو ہے یہ صفت ہے, اس لیے شہر ادھر آ جائے گا اور امن والا ادھر چلا جائے گا, ٹھیک ہے. تو البلد الامین, اور اس کے لیے کیا لگائیں گے؟ ایک شہر ہے نا, آدھا. آزل بلد الامین. یہ دنیاوی زندگی, یہ دنیاوی زندگی, زندگی کو حیوان کہتے ہیں اور حیوانون بھی کہتے ہیں زندگی.
यानुन मन पाँच जगह यानुन कहता है। तो दुनिया तो दुनिया की ये क्या है, सिर्फ ये है जिंदगी को पहले लाएंगे, दुनिया को बाद में ले जाएंगे। और ये जो इशारा लगाएंगे तो ये कौन सा लगाएंगे मोनस है? मोनस का लाए दुनिया क्या है? मोनस की आपको बताइए, मोनस की क्या था? इसमें बोलते आ रहा है, आ रहा है? नहीं आ रहा। अलिफ ममदूदा आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, हमजा से पहले अलिफ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये दुनिया जो है मुज़क्कर है, तो ये के लिए क्या लगाएंगे? ये था ना हाजा आजा, या हल लगेगा इसमें। लेकिन यहाँ तो जो है वो मौसूफ हो जो है वो तो हयात है ना। हाँ, ये तो वो था ना। हाजा लगेगा इसमें। हाँ, हाजा हयात एक दुनिया ना, बहुत सारी दुनिया। ठीक है, हयात तो दुनिया होगा, दुनिया तो है है? हयात दुनिया आया ना कुरान में। हयात तो दुनिया होगा ना। हयात जो है वो मौसूफ है और तौसीफ दुनिया। नहीं, दुनिया पहले आएगा या तो नहीं, दुनिया की तारीफ की जा रही है ना। हयात तो दुनिया, कुरान में तो हयात दुनिया लिखी है। वो जोर दिया जा रहा होगा। असल में वो भी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। जब बहुत से, जैसे आपको भी इशारों में बता दूं, जैसे उलाइका माने वो उलाइका, हम माने वो सब, उलाइका माने वो, हम माने वो सब। उलाइका हुमुल मुफलिहून, हम का तर्जुमा वो लोग नहीं होगा, हम जो है जोर देने के लिए वो किया गया। उलाइका वो लोग ही फला पाने वाले। यही तर्जुमा देखा ना इसमें पीछे, याद है? यही तर्जुमा देखा। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आगे पीछे की जाती हैं, इसलिए कि उस पर जोर दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तभी बता दें, कुछ ताकि इस काम को क्लियर है। हाजल दुनिया अल हयात हाजर दुनिया तो हयात, मतलब गोल थे भी पूरी आ रही है उस पर। आजाद दुनिया, वो उर्दू वाला चेंज कर, उर्दू वाला अगर चेंज कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। नहीं, उर्दू वाला नहीं रखेंगे अभी। ये तो हम वो उसका असल में कुरान में अगर हम ऊपर से लाए ना बलदुल अमीन, तो इसी तरह हयात दुनिया इसी तरह बन गया ना। जिंदगी। और सॉरी आप सही हैं, मैं वही बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही। ये जो है यहाँ आएगा, ये यहाँ सही है। आप असल में यहाँ ये दुनियावी जिंदगी, इसको मैं इसको पढ़ के मैं इसको वो कर रहा था। चलिए, अब आना सिर्फ अब कुरान की वो करते, ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया मामला कि दूर का वाहिद तस्निया और जमा, और करीब का वाहिद जमा इशारा जो है ये क्लियर हो गया है। और फिर अगर तारीफ आए तो हम वही यानी मौसूफ और सिफ्त का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे इशारा। अब है ना थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये तो हमने बनाया कुछ। हाजा किताबुन अंज़लनाहु। अब देखें यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, हाजा जो है मार्फा है जी, किताबुन क्या है? नकरा। नकरा।
हाजा किताबुन अनज़लनाहु, उस पर एक किताब, हाजा किताबुन, ये किताब उतारी उस पर, ठीक है। ये छठा सूरे है और 155 जो है। कालू, उन लोगों ने कहा, इन्ना आजाने, एक चीज और वो नोट कर लें, कालू इन्ना आजानी लसहारानी साहिरानी आजाने साहिराने, जाहिराने, दो लोगों के उन्होंने लिए कहा बेशक ये दो जादूगर, अभी इसको हम है नहीं लिखा, अब पढ़िए इसको क्यों नहीं कहा। आलू इन्ना हाजाने, हाजाने में इसमें बेशक ये दो ला साहिरन, ये असल में हम लोग अरबी में इसे लिखते हैं, लेकिन इसको आप जब यूं लिखेंगे तो आप, हमारे पास ऐसे लिखा जाता है। साहिराने, साहिब को कहते हैं जादूगर, तो साहिराने दो जादूगर, दो जादूगर। तो चूंकि इंदा लगा दिया है इसलिए उन्होंने कहा बेशक ये दो जादूगर हैं, इन्ना की वजह से। इन्ना की वजह से, ठीक है। फिर अब देखें, हा उलाई अहादा, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। बहुत, एक मैंने बताया था आपको कि जैसे रंग का है वैसे सुपरलेटिव क्या होता है, अकबर क्या है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, इस वजन पर अगर कोई लफ्ज आता है अकबर, आता है, असगर बहुत छोटा, अहसन बहुत खूबसूरत, तो ये लोग क्या है, ये आधा जो है ये नकरा है, हाउलाई ये मारफा है, इशारे तमाम मारफा होते हैं, नकरा है, तो ये हिदायत याफ्ता, बहुत हदायत याफ्ता है, ठीक है। कुल हाजी ही, ठीक है, कहो मोनस, हाजी ही मोनस, सबीली, रास्ता, सबीली की बात क्या हो गई बताया था, रास्ता, रास्ता, है? रास्ता, आप बताइए सबीली, सबीली, हाजी सबीली है पूरा रास्ता। सबीली के माने बताइएगा आप, रास्ता सबीली के माने तरीक, है? तरीक, अब मैं बोलता हूँ, हाजा किताबी क्या माने, मेरी किताब, हाजा सबीली मेरा मेरा रास्ता, ठीक है। तो सबीली का मतलब तो रास्ता ही होगा। सबील माने ये रास्ता लगा। होगा ना, सबीली मेरा रास्ता, बैत मेरा घर, बैत नहीं, घर, हम ये वो नहीं सोच बैती रहे। मेरा घर, हम वो सबीली सबीली को सोच रहे थे कि आप उसका वो पूछ रहे, मीनिंग पूछ रहे। नहीं नहीं, सबील माने होता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है ना। क्योंकि ये हाजे ही क्यों लग रहा है, ही इसलिए सबील जो है मोन्नस है, ठीक है। कुल हाजे ही सबीली, अहदा आदम बिनती हातैनी, हाथा आधी एक अकेली, बिनती, यहाँ देखिए इसमें देखिए क्या 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 मैंने हुआ, बिनती माने अबनती लिखा मेरी, मोहन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ। या बिनतिया, तो उसका मतलब ये दो है ना, दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। है, आता ही नहीं। आहादी एक लड़की है ना, और आगे दोनों में से एक थी, अहदहुम, अहदहुमा कहना चाहिए, उनमें से दो, एक को कहा जा रहा है कि ये मेरी बेटी हाथ देना, बस वो पेश कर देता हूँ, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलिए, नहीं नहीं वो नहीं, वहाँ की नहीं, बल्कि ये वो था
जब हना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए थे शुएब तो अलैहिस्सलाम। पानी पिलाया था शुएब अलैहिस्सलाम। सोहेब अलैहिस्सलाम की फिर बेटियां उन्होंने जो कहा था कि थी, 2 बेटियां थी ना सोहेब अलैहिस्सलाम की। नहीं कुरान में शुएब तो है, अलैहिस्सलाम। पुरानी आई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सोहेब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी। हाँ, एक हाँ, बेटी वही है। मूसा अलैहिस्सलाम को दे एक, हाँ, दिया ना उनमें से एक कि बेटी। उनमें वो 8 साल और 10 साल 10 साल की एक मुआहदा था कि ये जो महर था वो 8 साल तक उनके पास होती। हाँ सही। नाकतु, नाकतु माने क्या होता है? नाकतु के माने ऊँटनी, ऊँटनी, ऊँटनी मुज़क्कर है मुअन्नस? मुअन्नस है। उसकी मानी पता होगी ना। वरना हालांकि नाकतों की एक और निशानी ये थी कि गोलते आ रही थी, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तो ठीक होता। हे भी हाँ पेश सही लगी। नाकतु। तू नहीं अब लगा। ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये मुरक्कब इजाफी है। सफड़ी है क्यों बात ना का हु है, नाकतुल तू नहीं लिखा हुआ ना, नाकतुल्लाह, हु लिखा हुआ। गलती मेरी है। नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की नाकतुल्लाही, अल्लाह ये की। अल्लाह की हुक्म है। हाँ नहीं नाकतुल्लाही। ला माने तेरे लिए, लिए ला माने लिए लिए। या के लिए दोनों थे। प्रीपोजिशन। लकुम तुम का लोगों- कुमा कुम, तुम लोगों की लकुम तुम लोगों के लिए। आयातन एक ते नहीं, आयातन माने ते पे नुक्से गाए। मैं लिखते वक्त इतना बोर्ड लिखता हूँ मैं तकरीबन नमाज पढ़ने के बाद मैं लिखता हूँ कि टाइम बचे क्योंकि हमारे पास नहीं टाइम हम शुरू वो होता है। हमारे से कोई लेकिन ये कि इतना लिखने के बाद फिर मेरे और मैं तो टांग वांग मेरे से ऐसी प्रॉब्लम है तो दर्द हो जाता है। फिर मैं जाता हूँ फिर मैंने उसकी मुझे 3, साढ़े 3, पौने 4 बज जाता है। तो फिर सोचना ही पड़ता कि ये लिखूँ ये नहीं लिखूँ। पहले मैंने सुबह हाजा हाजा लिखा था तो मैंने चेंज किया तो मैंने कहा ऐसे हाजा हाजा लिखूँगा तो नहीं समझ में आएगा। हाजा को वहाँ रफा से लेके ना जब तक फिर जाले का फिर चेंज मिटा के फिर एक सवाल ये कि हमने यहाँ पढ़ रहे थे अब तक जितने भी पीछे में प्रैक्टिस की उसमें हमें मारफा ही की सारी जितने भी इसमें इशारी हैं इशारी मारफा होगा। लेकिन यहाँ पर सब आप वो लकड़ा में ये इसलिए नकरा हो रहा है कि ये जुमला मुकम्मल है। इसमें नकरा जो आ रहा है जुमला मुकम्मल है। इसमें मैंने बताया कि बहुत थोड़ा सा फर्क था जिसको हमने छुपाया था। एक पैनिक क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए मारफा जो है ये सिर्फ सीखने के लिए और प्रैक्टिकली तो ये नकरा ही होंगे सारे क्योंकि आयतें हाँ हाँ सारी तो मुकम्मल बात बात है, मुकम्मल जुमले होते हैं जब। लेकिन ये याद रखिए कि मनफी मनफी प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। जब 2 नाकिस मुरक्कब आएंगे तो प्लस हो जाएगा। वो है वो ये जाएगा। ठीक है क्लियर? किसी को डाउट नहीं है? यहाँ तक पहुँच गए? किसी कोई ऐसा वो नहीं है? फिर आ जाए ये नाकुतुल्लाह माने अल्लाह के हुक्म आ गई। लकुम माने तुम लोगों के लिए। तुम लोगों की आयातुन एक निशानी है। फाजूरू हा, हा क्यों लिखा है? क्योंकि नाकता उठनी है। इसको छोड़ दो, बस इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ दो। ठीक है ना? अब आए ज़ालिका मा कुन्ना नबागा। लाभा हुई। ज़ालिका मा कुन्ना नबागा, यानी ज़ालिका जो है वो कुन्ना वाले हम दोनों यही चाहते थे। क्या? नबागा, हम यही चाहते थे। क्या? वो ये वहाँ पर है कि वो मछली जो है ना भूख करती थी, फिर वो मछली का ना तो सुराग लेके नहीं पहुँचे तो कहा था कि हाजा ज़ालिका मा कुन्ना नबागा। अच्छा एक और चीज़ जो है बहुत अहम है, ये अब इसलिए हाँ मैं बताना चाहता हूँ। आपने देखा ज़ालिका माने वो, ज़ालिका माने वो अकेला। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये 2 आदमियों से कहा जा रहा है तो ज़ालिकुमा उसके मानी नहीं लिखे होंगे। ये आपको सेंस देता कि 2 आदमी से कहा ज़ालिकुमा, और जब जमा से कहा तो ज़ालिकुमा ज़ालिकुम। ठीक है। जमा। तो आपको ज़ालिकुम जब आता है तो उसका ये मतलब ये कि तस्निया है, नहीं तस्निया नहीं है। वो वो आपको ये बता रहे कि कितने आदमियों से कहा कितने है। लोग हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? सही। आगे बढ़ूं? अच्छा तो ज़ालिकुमा
ये दो ये लोग दो आदमी से कह रहे हैं ये दो मिम्मा लोग। अल्लमनी रब्बी, क्या माने ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। अलमनी का मतलब तो मेरा इल्म। अल्लमनी जब है ना वो होता है, क्या कहते हैं, वर्ग होता है और अल्लाह की मुझे अपना तरफ कहना से होता है इल्म तो नून लगाते हैं, ऐसे तो किताबी है। ज़रबनी उसने मुझे मारा, याद आया, ज़रबनी, नसरनी, नसरनी। तो अल्लमनी रब्बी, अल्लाह की तरफ से रब्बी मेरे रब ने मेरे रब। क्या किया, सिखाया। अल्लम है तस्दीद है, अल्लाह उसी का ये इस वक्त अल्लाह मानी नए लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन अल्लम माने सिखाना, याद रखें। अल्लमहु और जो उसको सिखाए, कुरान सिखाए। खैरुकुम मिन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो ये वो है, तो ये जो है मेरे जो कुछ है मेरे रब ने सिखाया, ठीक है। एक दफा पढ़े ताकि पता चला, पढ़े ज़ालिकुम हम लोग पढ़े। अच्छा, कुमा माने वो दो आदमी सब खाते थे, ये ज़ालिकुमा यानी बात तो वही है, वो जो कुछ भी माँ मीन और माँ का तो ठीक है। पर मुँह से पढ़ो ताकि आपको इसको कहते हैं जो कुछ। इसका कॉमन बता देते हैं और मिम्मा जो कुछ, आप समझे। ज़ालिकुमा जो आदेश करे वो, यानी जो कुछ मुझे सिखलाया है मेरे रब ने, ठीक है। जुमला पूरा हो गया ये। अच्छा, ज़ालिकुमुल्लाह, आप कितने आदमी से कह रहे हैं, तमाम सारे से लोग। जितने कुरान पढ़ने वाले हैं, जितने वो ज़ालिकुम यानी जितने मुसलमान हैं सबसे कहा जा रहा है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम। तो वो अल्लाह है जो तुम सबको पालने वाला है। रब्बु माने पालने वाला होता है ना, ज़ालिकुम रब्बकुम, वो अल्लाह है जो तुम सब लोगों को पालने वाला है। क्लियर पढ़ा एक दफा ताकि आपको समझ के पढ़े, इसमें तर्जुमा नहीं करना है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम। फ़ज़ालिका, ज़ालिका के माने क्या हुआ, ये कौन सा है, रफा कौन सा, तस्निया। फ़ज़ालिका पस तो, या ज़ालिका दे दोनों, बुरहानाने मिन रब्बिका, ये दो दलीलें हैं रब की तरफ से। बुरहान माने दलील होता है। उलाइका अला मुदम्मिर रब्बिही, ये तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है सूरह बकरा में। उलाइका वो लोग अला पर पर, उन लोगों पर। अब अगला हमारा सब्जेक्ट ये होगा अला मिन, ये वो जितना है ना प्रीपोजिशन को हर्फ जार कहते हैं, ये पढ़ेंगे, ये बहुत अहम है। 12-13 अल्फाज हैं जो 8500 मरतबा है कुरान में, और ये दो ही लफ्ज़ हैं, दो जर में 2 दफ़ा जाते हैं। एक तो ये होगा हर्फ जर होगा, या फिर मुज़ाफ़ अलैह का यानी उसका मुरक्कब इज़ाफ़ी का मुज़ाफ़ अलैह होगा, वो जर दो जर में जाएगा। एक तो ये हर्फ जर होगा तब जाएगा ज़ेर, और एक कब जाएगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी का मुज़ाफ़ अलैह जब होगा। काकी ये होता है, मैं बता दूँ अल्लाह उदम। अब ये देखा आप कहेंगे जेल में तो गया नहीं, क्यों नहीं गए थे, ईसा मूसा हैं मबनी है,
मिन रब्बिहिम, वो लोग हिदायत पर हैं। किससे, किसके हिदायत पर? ताला की अपने रब की तरफ। रब से हिदायत पे, रब की तरफ से। ठीक है, माशाल्लाह ये हो गया। अब 3 रह गया, इसको कर लेते हैं। अब सिर्फ पढ़ना, इसको समझ के पढ़े। ज़ालिकल किताब ये वो किताब है ला जिसमें कोई शक रेबा, कोई शक नहीं। ये वो रेबा है, रेबुन नहीं है। ये रेबा ये है कि अभी भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। ला रेबा, कभी भी नहीं शक, एक रत्ती बराबर शक नहीं है। ला रेबा से लाए नहीं कहते हैं, लाए नहीं, इनकारिया नहीं, लाए नहीं कहते हैं कि आप हर तरह से मुस्तकबिल में आप इसका इनकार करें। ला रेबा, इसमें कोई भी रत्ती बराबर शक नहीं है। फी ही, इसमें फी माने में, ही माने इसमें। ठीक है, ये पढ़े तिलका आयात। तिलका क्यों आ रहा है? अल्लाह की आयात जो है मुअन्नस है। मुअन्नस, और ये जमा है गैर आकिल की। तिलका आयातुल्लाह, ये आयतें हैं अल्लाह ताला। तिलका रसूल, तिलका आया फिर रसूलू, ये भी गैर आकिल में समाप्त होता, बल्कि ये इसके लिए वो है। यहाँ ज़ालिका भी लिख सकते थे, जो है ना वो तरीक़ेकार है। लेकिन इसमें आपको इजाज़त है तिलका लिखें, ज़ालिका लिखें, ये क्योंकि जो आकिल की जमा मुकस्सर होती उसमें आपको इजाज़त होती है। क्या कहते हैं इसको? जायज़ है, जायज़ है कि इसको हम मुज़क्कर में भी ला सकते हैं। जायज़ का लफ्ज़ सुना ना, जायज़। मैंने पिछली तरह कुछ बात है, ये जायज़ है, ये जायज़ नहीं है। आकिल की आकिल में कह रहा है। आकिल, आकिल की जो जमा मुकस्सर होगी उसमें आप मुज़क्कर भी ला सकते हैं। ठीक है, और मुअन्नस भी ला सकते हैं, जायज़ है दोनों। ठीक है, ये यहाँ तक का समझ था। अब पता नहीं कहाँ तक आप लोगों को मैं समझाने की इसका कोशिश की पूरा मैंने। बताया जी, पूरा ट्रांसलेट बताया तर्जुमा नहीं पढ़ रहा। तिलका माने तिलका रसूल, तिल का रसूल की जमा रसूल है, रसूल ये जमा है। और जमा कौन सी है? जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर। फज़लना, हमने फजल के रसूल पे हमने फजल किया। ये फजल जो है हमने फजल किया किस पे? रसूलों पर, उन रसूलों को। ठीक है। उसको